friends, I Yashu Srivastava, Assistant Professor in Biyani Group of Colleges from Commerce and Management Department. Today I am going to deliver a lecture on the topic of functions of management. But friends, before discussing the functions of management, I would like to discuss with the meaning of human resource management. यानी human resource management क्या है, हम इसके बारे में देखेंगे. In general context, it is said that an organization is nothing without HR. That is why people are essential ingredient for any kind of organization, for being the organization social, religious or governmental. Now comes at the meaning of human resource management. Human resource management is a management function that deals with the recruiting, selecting, training and developing of the human resource. यानी organization में human resources को recruit करने से related है HRM, उन्हें select करने से related है HRM, उन्हें trained and develop करने से related है आपका human resource management. That is why it is concerned with the people dimension in the organization and includes all the activities which are focusing on the effective utilization of human resources or people, we can say. So it is the basic meaning, it was the basic meaning of HRM. Now let's start the function of human resource management. यानी human resource management के functions क्या हैं, अब हम वो देखेंगे. So basically human resource management has three main functions. First one is managerial, second one is operational and third one is advisory function. Now let's start managerial function. What are managerial functions? Managerial functions are those functions which are related from the managerial activities. यानी managerial activities से जो भी functions आपके related हैं, connected हैं, that are known as managerial function. So firstly, managerial function, there are different type of managerial function in the organization, and those are, first is planning यानी नियोजन. We all know about the planning, and in our daily life we use this term for achieving our common objective of life. And in management, in organization, planning is a process about deciding course of action in advance about future. यानी अपने future के बारे में advance ही जो है decide कर लेना ही आपका कहलाता है planning. After planning, organizing comes, and organizing is a process where the HR manager binds all the resources together. ये वो स्टेप है जहाँ पर एक मैनेजर अपने सारे रिसोर्सेज, इट कैन बी नेचुरल, फिजिकल एंड ह्यूमन और फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज. आई थिंक मैनेजर बाइंड्स ऑल दीज रिसोर्सेज टुगेदर एट दिस ऑर्गेनाइजिंग स्टेप. So first of all, human resource manager will do the plan, will make the plan, and after that he organizes all the resources in the organization. After organizing, third function is directing. Directing is a process for influencing behavior to others. किसी भी कंडीशन में अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स के, आप अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को अगर इन्फ्लुएंस करते हैं, वो प्रोसेस होता है आपका डायरेक्टिंग. और ये डायरेक्टिंग, इस प्रोसेस में एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ से वो काम भी करवा लेता है अपनी एक डायरेक्टिंग स्किल्स से, जो काम जो यूजुअली या जनरली आपके एम्प्लॉयज़ आपको मना कर देते हैं. यानी डायरेक्टिंग की प्रोसेस में डायरेक्टिंग वो एबिलिटी है जिस एबिलिटी के थ्रू हम हमारे सबॉर्डिनेट का हार्ट भी जो है एक सॉफ्ट कर सकते हैं और उन्हें उनकी डिज़ायरेबल कंडीशन में ही उनसे काम करवा सकते हैं. After directing, next function is controlling. Controlling is a process where the standard performance is evaluated with the actual performance. यानी standard performance, what is the standard performance? I think which is decided at the beginning from the manager. एक manager जो किसी भी year के starting में जब एक standard performance जो decide कर देता है, उससे आपकी comparison होगा आपका actual performance जो कि आपके
आपके एम्प्लॉयज़ आपको देंगे, यानी आपके सामने परफॉर्म करेंगे। कंट्रोलिंग वो प्रोसेस है जहाँ पर हम हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी जो भी उनका मिसयूज़ हो रहा है, उनका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसे रोक सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली मैनेजरल फंक्शन हमारे हैं जो हमें ये गाइड करते हैं, या जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को गाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में उसे स्टार्ट करना है और कहाँ तक उसे कंट्रोल करना है। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द मेन मैनेजरल फंक्शन. Now let's start the operative function. Operative function, first one is acquisition. Now the friends, the point is, what is acquisition? Acquisition is to attain something, किसी भी चीज़ को अचीव करना, किसी भी चीज़ को ग्रहण करना जिसे कहा जाता है। लाइक अब मैनेजमेंट में इसका क्या रोल है कि यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर सबसे पहले उसका टास्क रहेगा, द मेन टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू अचीव गुड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर पहला टास्क रहेगा एक मैनेजर का कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे एम्प्लॉयज जो है एक्विजाइट करे या फिर अटेन करे, सो दैट आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए जो है आप स्टार्ट अच्छा कर पाएंगे और अपने एम्प्लॉयज के सपोर्ट से अपने टारगेट्स को पूरे कर पाएंगे। After the acquisition, the next function is training and development. Training and development, यहाँ पर आपके after getting the good human resources, after getting the good employees, आपकी as a manager एक duty रहेगी कि आप उन्हें बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ऑन विच पॉइंट दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, जिस पॉइंट पर वो प्रॉब्लम फील कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको जो है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और उनकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर जो है कंटिन्यूसली ईयर एंड ईयर आपको फोकस करना है। सो बेसिकली ये आपका आफ्टर एक्विजिशन रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन्हें जो है अचीव करना है, उन्हें जो है कहीं ना कहीं से सर्च करना है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज आप अपने प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज से उनकी जो है ग्रोथ करेंगे, उनका एक ओवरऑल उनका डेवलपमेंट करेंगे। After the training and development, the third function is motivation. Motivation is the force by which we can attain the objective, and in organization motivation plays a very important role. Organization में motivation अपना बहुत ही important role play करता है, क्योंकि इसमें किसी भी need, किसी भी desire, किसी भी want से आप बड़े से बड़े task को जो है complete करवा सकते हैं अपने employees के थ्रू। बस ज़रूरत है एक manager को उनमें वो need को create करने की, उनमें वो desire create करने की, उनमें उनकी wants जो है create करने की। After that you can better guide to your employee, you can better motivate to your employees. So motivation एक ऐसा फोर्स जिसके थ्रू हमारे एम्प्लॉयज़, यानी हम अगर मैनेजर हैं तो हम अपने एम्प्लॉयज़ से डिफ़िकल्ट टास्क को जो है परफॉर्म करा सकते हैं। आफ्टर द मोटिवेशन द पॉइंट इज मेंटेनेंस। अब नाउ the point is maintenance. What is the role of maintenance, या what is the function of maintenance in the human resource management? यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में जो एक्विजिशन एम्प्लॉयज़ का होगा, अब ज़रूरी नहीं है कि हमें एम्प्लॉय मिले, ज़रूरी है कि हम उन्हें कितना लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव अपने ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, हम कितना लॉन्ग टाइम तक उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में रोक के रखते हैं। सो इस मेंटेनेंस के लिए आपको एक एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ की सारी उनकी डिज़ायर, उनकी जो भी नीड्स हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें फुलफिल करना होगा एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सो मेंटेनेंस वो पॉइंट है जो आपके एम्प्लॉयज़ को एक मैनेजर के क्लोज करता है। इस पॉइंट के थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में अपना ट्रस्ट मेंटेन करता है और उनके बीच में अपना एक रिलेशनशिप जो है, उनके ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप आई थिंक गुड बन पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंटेनेंस। After the maintenance, the next and last function is personal records. At this point, human resource department, I think, which is run successfully by the human resource manager. तो मैनेजर का अब ये पॉइंट, ये टास्क हो जाएगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के पर्सनल रिकॉर्ड्स जो हैं बहुत बेटर फॉर्म में जो है मेंटेन करें। बेटर फॉर्म में क्यों? क्योंकि एक मेंटेन अगर आप कर रहे हैं बट वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है तो उतना जो है आपका आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। सो इस कंडीशन में आपको
वो रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करना है, सो दैट इन फ्यूचर अगर आपके यहाँ किसी भी चीज़ की डिमांड रिगार्डिंग HR अगर राइज होती है तो आप उसे ऑन दैट मोमेंट जो है सक्सेसफुली अचीव और कंप्लीट कर पाएँ. बिकॉज इफ़ यू हैव डेफिशिएंसीज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट यू कैन गेट बेटर ऑप्शन फ्रॉम दिस पर्सनल रिकॉर्ड. बिकॉज इसमें पास्ट एम्प्लॉयज़, इसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, इसमें फ्यूचर एप्लीकेशन, वो सारा रिकॉर्ड जो है मेंटेन किया जाता है, सो दैट इन फ्यूचर व्हेन द डिमांड इज गोइंग टू बी अराइज, दैट टाइम वी कैन गेट बेटर ऑप्शन फ्रॉम these personal records. So basically these are the operating function which I think can make the organization very successful. And now comes at the third point of human resource management function, that is advisory function. I think those are related, I think which are related from the guide, from the advice, from the support, and from for giving the suggestion to the different kind of people in the organization. And they are, first one is top management. इन दिस स्टेप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टास्क, सबसे बड़ा फंक्शन है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़, रिगार्डिंग द सबॉर्डिनेट्स. आप जो है अपने टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस जो है उन्हें प्रोवाइड करिए. उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें क्या इस टाइम पे ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हें क्या फैसिलिटीज़ और ज़्यादा चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन से. इसकी नॉलेज एक मैनेजमेंट जो है, डिपार्टमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स, उसे टॉप मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करनी होगी, सो दैट टॉप मैनेजमेंट भी जो है अपने सबॉर्डिनेट की नीड, उनकी डिमांड, उनके डिज़ायर से फामिलियर हो पाए. सो इसलिए इसको टॉप जो है कैटेगरी में रखा है कि एडवाइस टू टॉप मैनेजमेंट इज अ प्राइमरी, is a main task of the human resource management. After guiding the top management, the second point is advice to departmental heads. After guiding the top management, because top management overall goal decide करते हैं, overall policies को decide करते हैं, तो अब उनके बाद next step आता है कि आप उनके next level, यानी उनके जो down level है after the top management, आपके departmental heads से हैं, और departmental heads को ये guide करना कि उन्हें जो है वर्क ऑफ अलॉटमेंट और अदर फैसिलिटीज़, अदर रिक्वायरमेंट, अदर जो है नेसेसिटीज़, उन्हें फोकस करना है अपने एम्प्लॉयज़ की, सो दैट दे कैन प्रोवाइड बेटर सपोर्ट, दे कैन प्रोवाइड बेटर एडवाइस टू द एम्प्लॉयज़. बट इसके लिए ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी भी उनकी नेसेसिटीज़ हैं, उनसे familiar कराएं. So basically these are the human resource management function, managerial, operative and advisory function, I think, which are very necessary for running an organization very successful and very in effective manner. So thanks for watching this video. Please like, comment, share, and don't forget to subscribe our YouTube channel and visit our website www.gurukpo.com.